So this was the our सेज वीडियो, हमारे सेज ग्रुप का वीडियो था. ठीक है, अब हम अपने एक्सपर्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं. गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. I, Dr. Jaykumar Jain, on behalf of the Department of Information Technology, SIIT Bhopal, very warm welcome to all of you in this webinar. So now, today, we have one more expert in this galaxy of webinar, Dr. Brijesh Bakaria. Dr. Brijesh Bakaria has completed his PhD from Manet in 2016. He has around 12 years teaching and as well as research experience. And he is currently working as a professor and head IK Gujral Punjab Technical University, होशियारपुर, पंजाब. So now, जैन सर आवाज कट कट के आ रही है आपकी. आवाज कट रही है. हेलो, अब ठीक है? हाँ सर, हाँ अब ठीक है. हाँ. So now we have Dr. Brijesh Bakaria will deliver the talk on lecture on MATLAB tools with programming. So Brijesh Bakaria sir, are you ready for continue? Yes. Okay. Can I share my screen? Yeah. You can share. Okay. Is it visible? Yes, sir. It is visible. No doubt. Good afternoon to all of you. Today I am going to discuss about problem solving through MATLAB programming. First of all, these are the outline which I am going to cover. First of all, what is problem? Generally, this terms is you already know about problem. Problem is a situation or condition that is arise and you cannot through this you cannot achieve your goal. Then what is problem solving? How to what is this? The problem solving is the process of finding the efficient solution to the given problem. Here I am also using the term efficient. Efficient means we have lots of solution of a particular problem, but we have to specify the efficient one. Which one is more efficient? Which one is best? Then you have to choose, or we can choose that types of solution to solve a particular problem. Yes, sir. Sorry for interrupt you. You can continue in Hindi and English both. So it will be beneficial for the student very well way. Okay, sir. Thank you, sir. Then every problem in the real world needs to identify and solve. A real world, as sir said, this is comfortable for Hindi and English. Then I'm going to tell a mix of both languages. Then रियल वर्ल्ड में आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं, बस यू हैव टू फॉर्मुलेट दोस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम in a specific way. How to solve? The question is how to solve a problem. What are the solutions available and how these types of problem can be solved. Then if you have problem, then you have या तो एक तरीका ये एक वे ये है कि आप मैनुअली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, या फिर आप उसको कंप्यूटराइज्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो. इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? इफ योर प्रॉब्लम इज सो स्मॉल, then you can easily through manual, but if you have a large problem जिसका solution इतनी easily आपके पास available नहीं है, that you need a computer or program to solve a particular मतलब आपके पास कोई प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते. तो फॉर एग्जांपल एक स्मॉल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बहुत स्पेसिफिक टाइम में आंसर मिल सकता है, लेकिन if I am talking about a bigger problem, then you have to divide, और आपको उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और उन सब पार्ट्स को सॉल्व करना पड़ेगा. Here the term is divide and conquer. You know everything about divide and conquer because you already
read about the data structure, algorithm analysis, whatever. Then divide and conquer is the techniques to solve your large problem into number of sub problems. Divide the sub problems and conquer the sub problem. Conquer means you have to get the solution of sub problem and generate the solution of for optimal for whole problem. तो स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले तो अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम आपको पहले तो सबसे पहले ये समझना है कि प्रॉब्लम आपके पास क्या है. मींस आप किसको प्रॉब्लम कहोगे. तो प्रॉब्लम जनरली जिसका आपको कहीं ना कहीं जिसको आपको उसको सॉल्व करके या उसको यूज करके आगे आपको उसको आगे एफिशिएंट बनाना होगा कहीं ना कहीं. तो सबसे पहले अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज डिजाइन द सॉल्यूशन. Then you have, for example, suppose मैं एक C लैंग्वेज की अगर बात करता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करता हूँ, या आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम बनाना है. तो my problem is I have to add the two numbers and get the solution. First of all, design. पहले तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि प्रॉब्लम है, आपको ऐड करना है. Then design the solution. Design means you have to figure out your problem. In terms of here I am using flowchart in terms of C. तो flowchart आपको बनाना होगा. Then उसका प्रोग्रामिंग आपको कोड लिखना पड़ेगा. The next step is coding. Then टेस्ट करना पड़ेगा कि हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम का आंसर आपका स्पेसिफिक है कि नहीं है. तो आपको उसका इनपुट चेक करके आउटपुट आपका प्रॉपर आ रहा है कि नहीं. अगर वहां पर आउटपुट कहीं रॉन्ग हो रहा है तो मीन्स आपका कोडिंग के पार्ट में कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम है. कोडिंग की प्रॉब्लम क्यों होगी? अगर आपने डिजाइनिंग ठीक नहीं की होगी तो कोडिंग में दिक्कत होगी. तो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. एवरी स्टेप इज इंटरकनेक्टेड इन दिस. डॉक्यूमेंट द सॉल्यूशन. डॉक्यूमेंट द सॉल्यूशन. द लास्ट स्टेप इज डॉक्यूमेंट. सपोज मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करता हूँ. सपोज एक कोई सॉफ्टवेयर पर्सन है जो कोडिंग करता है. अगर सपोज वो कंपनी से अगर स्विच करता है तो अगर उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो आप सॉफ्टवेयर को कहीं ना कहीं आगे इनहांस नहीं कर पाओगे, उसके फीचर्स डिसाइड नहीं कर पाओगे और उसको आगे अपडेट नहीं कर पाओगे. तो लास्ट में कोई भी सॉफ्टवेयर या इसकी बात करें तो आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, जिससे हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे आ रहा था और इसमें क्या क्या आगे आप उसको चेंजेस कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज now I'm going to discuss about MATLAB. This is my topic, MATLAB. MATLAB is a मैट्रिक्स लेबोरेटरी. ये मैट्रिक्स इसका फुल फॉर्म है मैट्रिक्स लेबोरेटरी. ये 1970 में मैथवर्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप किया था इसको. इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल मींस यू कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली थ्रू द यूजर. आपको इसके लिए आपको इसके लो लेवल पार्ट पे नहीं जाना है कि आपके सिस्टम कमांड्स क्या होंगी या इसके लिए और हार्डवेयर का या फिर इंटरनली आपको लो लेवल की बात नहीं कर रहे हैं. हम हाई लेवल की बात करें तो डायरेक्ट आपको यूजर से इंटरेक्ट कर सकते हो. तो मैटलैब इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू. जनरली मैटलैब आपने नाम जनरली सुना होगा. मैटलैब पे लोग काम भी कर रहे होंगे आप लोगों में से. मैं आपको मैटलैब का बता देता हूँ. मैटलैब जनरली स्टूडेंट्स के लिए आजकल जो भी जैसे चल रहा है, जैसे हम बात करें मशीन लर्निंग हो गया या डेटा माइनिंग और डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो मैटलैब इसके लिए बहुत इफिशिएंट टूल है. तो जो स्टूडेंट्स है, रिसर्च स्कॉलर्स है, एकेडमिशियन है, इंडस्ट्रीज है, सारी जगह पे मैटलैब यूज हो रहा है. तो मैटलैब का आप यूज करके आप कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप एफिशिएंट कर सकते हो अपनी कोडिंग को. तो मैटलैब इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. इट इज यूज्ड फॉर कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू. कंप्यूटेशनल मींस सपोज आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. देन इस डेटा को आप कैसे प्रोसेस करोगे? हाउ टू प्रोसेस दैट डेटा in a particular specific amount of time. Then MATLAB is an efficient tool for processing these types of data. But you clearly understand what kinds of input you are using. You have to use a matrix or vector. I will cover these topics in later my slide. And then matrix and vector are the formation of data when you are using MATLAB. MATLAB provides various inbuilt function. It is already
it has various types of inbuilt function you can use directly, or tools are also available. Tools means you can say package or complete system. You can say complete system जिसके थ्रू आप उसको इजीली यूज करके अपने कोडिंग में आप कोडिंग में यूज कर सकते हो. मैनिपुलेशन टास्क और जितने भी ये टास्क या मैटलैब के थ्रू इजीली कर सकते हैं. मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल भी इसका करके बताऊंगा कि मैटलैब कैसे आप यूज कर सकते हो. These are the built-in function and tools of MATLAB. There are two types of here I am separating into two types. First is interface or built-in interface function or computation. Then second one is toolbox. Interface means you can use various types of language like C, Java, Fortran. You can use these types of code you can use in MATLAB. Then computation point of view से अगर हम बात करें तो आप जितने भी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं या लीनियर जैसे या फिर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, लीनियर अलजेब्रा हो गया या डेटा एनालिसिस की बात करें, ये सारे आप MATLAB पे आप कर सकते हो. ये सारा काम कितना भी आप कर सकते हो. ग्राफ, मल्टीमीडिया, इमेज प्रोसेसिंग, जितना भी काम है आप इसको MATLAB में. टूल बॉक्सेस क्या क्या है आपके पास? टूल बॉक्सेस में सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, स्टैटिस्टिक्स. ये टूल बॉक्स में एक कंप्लीट पैकेज होता है जिसका यूज करके आप अपनी कोडिंग में यूज कर सकते हैं इन टूल बॉक्स का यूज करके. देन इंपॉर्टेंस ऑफ MATLAB. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंस एंड बहुत सारे और भी है. मैंने कुछ आपको कवर किए हुए हैं. जैसे इजी टू न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन. जो हमारा न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है वो काफी इजी है. न्यूमेरिकल डेटा और वैल्यूज के लिए काफी इफिशिएंट टूल है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं. जिससे प्रोसेसिंग ऑफ मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा आई हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट. दिस इज एप्लीकेबल फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन द साइज as the size of data. Representation and visualization of data. You can clearly represent in the data in different formats. And visualize means you can create a graph as you desire, as you need. Then you can create user interactive environment. It is very user interactive, allowed to user interactive environment. This is very efficient to code your of your task. And this mathematical equation is also allowed in MATLAB. Computation point of view, statistics, and different types of tools. It also supports other types of languages like C, Java, .NET, and also you can interact with this language. The MATLAB interface. I will discuss about what is MATLAB interface. What is this? Then so I skip this slide. This is the basic interface of MATLAB. When you install generally MATLAB software आपका license software है, then your organization आपके organization को पहले इसको purchase करना पड़ेगा before using. But you can पर ऑनलाइन भी आप इसमें कोडिंग कर सकते हो. जनरली आप ऑनलाइन में साइन अप करके मैथवर्क के थ्रू आप इसमें कोडिंग कर सकते हो बिकॉज इट इज आल्सो क्लाउड अवेलेबल ऑन क्लाउड एनवायरनमेंट. बट स्टूडेंट वर्जन आप यूज कर सकते हो इसका. बट ये मैंने ये कहा कि आपसे लाइसेंस सॉफ्टवेयर, दैट मींस यू हैव टू परचेज this type of software and you can use. So this is the basic interface of MATLAB. Features, various types of features also available like simulation. You can use simulation, plotting, 2D and 3D plots, integration, differentiation, various types of statistical and mathematical function also. Here I'm describing more in the in MATLAB interface. Here this is the current directory and this is workplace section. Workplace section means जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट करोगे उस वेरिएबल का जितनी इंफॉर्मेशन है आपके वर्कप्लेस सेक्शन में आ जाएगा. नेक्स्ट इज कमांड विंडो.
यहाँ पर आप अपने स्मॉल अमाउंट ऑफ कोड कर सकते हो, बट दिस इज द स्क्रिप्ट सेक्शन। स्क्रिप्ट सेक्शन में क्या होगा, जनरली जब आप फंक्शन यूज करोगे या फिर आपका कोडिंग में फंक्शंस आते हैं या और भी आपको लार्ज नंबर ऑफ कोड आप करते हो, तो यू कैन यूज दिस सेक्शन एंड हियर दिस इज वेरियस टाइप्स ऑफ मेनूज। ये आपको ये डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपने आपके टास्क के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं इसको आगे काम। तो द एप्लीकेशन ऑफ मैटलैब, आजकल मैटलैब का एप्लीकेशन आपने देखा होगा हर जगह ही है। अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें, डेटा एनालिटिक्स की बात करें, इन सब में आपका मैटलैब आप यूज कर सकते हो। इसमें क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो, क्लस्टरिंग कर सकते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एसोसिएशन रूल्स हो गए, डेटा माइनिंग हो गई। बैंकिंग में कोई सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना है, बैंकिंग में, इंडस्ट्री में, इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर नेटवर्क और मैनी मोर। तो मैटलैब एक पूरा कंप्लीट पैकेज है या एक पूरा कंप्लीट टूल है, जिसके थ्रू आप अपनी कोडिंग आपके टास्क के अकॉर्डिंग आप कोड कर सकते हो, और उसमें आप अपनी कोड को एनालाइज भी कर सकते हो कि कितना उसमें टाइम या कितने वेरिएबल्स आपके यूज हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एफिशिएंट टूल। देन expressions, you know the term of expression because if you are using some mathematical calculation or arithmetic equation, if you are using to solve an arithmetic expression, then expression means it is a combination of operand and operator also. Here I am using a plus b. A plus b is nothing, it is an expression. A and b are the operands and plus is the operator. तो आप डिफरेंट एक्सप्रेशन आप कर सकते हो। एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ, दिस इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल इन अ स्पेसिफिक वैल्यूज। फॉर एग्जांपल c equal to a plus b, so it is a correct expression, but if we are using a plus b equal to c, then it is incorrect. Why? Because you know very well about the expression, because left hand side should be I think my screen is here. Visible? Yeah, visible, sir. Screen visible है. Okay. Then there are two types of expression: valid expression and invalid expression. Suppose let I am demonstrating. Suppose 10 plus I'm writing 10 plus 20. Then what is the answer? Is 30. Then 30 is the this is valid. Why valid? Because if you are using 10 plus 20, then MATLAB में एक ऐसी फैसिलिटी कि ऑटोमेटिकली आंसर नाम का वेरिएबल आपका बन जाएगा। आंसर वेरिएबल में कितनी वैल्यू आ रही है आपकी? 30 वैल्यू है। अभी आपको देखना है कि वेरिएबल कहाँ पर है, तो आप ये यहाँ पर वर्क स्पेस जो दिख रहा है आपका, इस वर्क स्पेस में आंसर वेरिएबल है। इसको अगर हम डबल क्लिक करें तो इसके सेल में, अब मैं आपको बताता हूँ, इसको क्लिक करके इसके सेल में आपको 30 वैल्यू आपको ऑटोमेटिकली दिखेगी। ठीक है, क्लियर? अब बट लेकिन अगर आप ऐसा करते हो 10 प्लस 20 इक्वल टू सपोज ऐसे कुछ लिख देते हो, तो ये आपका इनवैलिड वेने की एरर जनरेट करेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक सिंगल अल्फाबेट और वेरिएबल होना चाहिए। एंड दिस टाइप्स ऑफ एरर मैसेज will show that is left equal to left hand side should be a single alpha. तो वैलिड और इनवैलिड क्लियर है आपको? देन आपके आता है नोटेशंस। देन इसमें टू टाइप्स ऑफ नोटेशंस होते हैं आपके, एक होता है सेमीकोलन नोटेशन, एक होता है कॉलन नोटेशन। सेमीकोलन नोटेशन जनरली आपको स्टेटमेंट के एंडिंग में, जैसे और भी लैंग्वेज में आप यूज करते हो, जनरली सी में यूज करते हो, बट इन दोनों में डिफरेंस है अगर आप सेमीकोलन लगाते हो और सेमीकोलन नहीं लगाते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या डिफरेंस है। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर मैं सेमीकोलन नहीं लगा, यहाँ पर मैंने लिखा है स्ट्रिंग में str एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है। देन आप उसमें आप है ना, ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, आपका आप स्ट्रिंग की वैल्यू शो होने लगेगी। लेकिन अगर मैं इसमें सेमीकोलन लगा देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा रहा हूँ,
तो आपको यहाँ पर वैल्यू शो नहीं होगी। ये देखो आपको वैल्यू शो नहीं हो रही है, तो मतलब आपको अगर वैल्यू अगर डायरेक्टली शो करना है तब आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है, लेकिन अगर वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करना है और शो नहीं करना है तो आपको, लेकिन अब इसको शो कैसे करें, तो आपको जस्ट यहाँ पर प्रिंट करना है कि ये सारी वैल्यू किसके अंदर आ गई है, str नाम के वेरिएबल में आ गई है। जैसे हम str को क्लिक करेंगे यहाँ पर वो str की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आप इसको ये सेमीकोलन का इसका ये डिफरेंस है। एक आता है कॉलन ऑफ कॉलन, जनरली ये आपके लूप में यूज होगा। जैसे आप लूप का अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट को अगर आप रिपीट करना चाहते हो आपकी कोडिंग में तो ये यूज करोगे। फॉर एग्जांपल हियर आई एम यूजिंग 1 to 5। 1 to 5 means 1 colon 5, that means it is sequentially print the 1 to 5 values, but here 10 colon 1 colon 20, that means you have to start from 10, you have to switch one by one. One means one by one switching is there, and up to what 20। तो ये आपका 1 से 10 से स्टार्ट होगा, 20 तक जाएगा। इसके बीच में अगर मैं बीच में यहाँ पर 20 इस 1 की जगह पे यहाँ पर अगर मैं 2 करता हूँ तो दैट मीन्स 10 देन 12 देन 14 16, इस टाइप से 2 की स्विचिंग आपकी। तो जनरली अगर आपकी कोडिंग पे डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप का लूप लगा रहे हो, कैसे आप उसकी स्विचिंग कर रहे हो। फिर आता है कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आपका जनरली आप कमेंट जो भी हो आप उसको आप परसेंटेज साइन यूज करोगे इसके लिए। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई कोड पे कमेंट करना है तो यहाँ मैटलैब में इसके लिए परसेंट साइन यूज होता है। परसेंट साइन जनरली अलग अलग इसमें अलग अलग होता है। सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें डबल स्लैश का यूज करते हो, अगर मल्टीपल कमेंट करना है तो स्लैश एंड स्टार का आप यूज करते हो। हियर यू आर यूजिंग परसेंटेज साइन। कुछ और भी कमांड्स है मैटलैब में जो बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, बेसिक कमांड्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे यहाँ पर ये cd आपके डायरेक्टरी की बताएगा, डेट वाइज मतलब डेट क्या है, पाथ क्या है, ये सारे कमांड्स आपको वन बाय वन बता सकता है कि ये क्या क्या इसमें कमांड्स है। फिर आता है आपके पास एक नया टॉपिक है डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर। एक्चुअली ये आपने पहले पढ़े भी होंगे। जनरली मोस्ट ऑफ थिंग्स यू आर आल्सो ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट, बट इन मैटलैब हाउ यू कैन यूज, बिकॉज सिंटैक्स चेंज होता है और कैसे आप इसको यूज करोगे, क्योंकि मैं बिल्कुल फंडामेंटल आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि वेरिएबल्स क्या है, फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, या फिर मैट्रिक्स क्या होती है, वेक्टर क्या है। तो आप ये छोटी स्मॉल थिंग्स जो है आपको अपने कोडिंग में यूज करके और इसको आप अपनी कोडिंग को अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि ये सारी इनके बिना आपकी कोडिंग बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि कोडिंग में आपको वेरिएबल्स लेने हैं, फंक्शन भी बनाने पड़ेंगे, अरे भी यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर टास्क। तो यहाँ पर डेटा टाइप आपको पता है डेटा टाइप किस लिए यूज होता है, टू स्टोर टू डिस्क्राइब द डेटा। जैसे कि डेटा का टाइप क्या है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग एज, अगर आपको एज सपोज एक एज अगर आपको कोई वेरिएबल करना है तो एज का डेटा टाइप क्या होगा, आपका इंटीजर होगा जनरली। अगर हम बात करें यहाँ पर अगर आप परसेंटेज की बात कर रहे हो, परसेंटेज आपको फ्लोटिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग के लिए आपको स्ट्रिंग कैसे आप यूज करोगे, तो एक वेरिएबल का नाम लिखोगे, यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, नाम के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर स्ट्रिंग के लिए आपको कोड के अंदर लिखना है। अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना है। इस तरह डिफरेंट डेटा टाइप आप यूज कर सकते हो। अब आता है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन you already know about the type conversion. That means you have to convert your one data type into another data type. तो इसके लिए बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं मैटलैब में, जिसका यूज करके आप एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में टाइप कन्वर्ट कर सकते हो। If you have any query, then you can while presentation you can ask me. तो आप अगर आपको पूछना है प्रेजेंटेशन के बीच में भी तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या है। तो अगर आप इनको अगर ओके सर, ओके मैं पोस्ट कर देता हूँ उसमें कि चैट बॉक्स में अपना लिख दें, जिसको अगर कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं सर को फिर बता दूंगा। ओके सर, कैरी ऑन प्लीज। टाइप कन्वर्जन मींस कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। हियर आई एम यूजिंग सम एग्जांपल int to str, that means you have to convert integer to string.
कभी कभी ऐसा ये कन्वर्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये क्या है, कभी कभी आपको डेटा को दूसरे फॉर्म में चेंज करके आपको कुछ आगे उसमें और उसको यूज करना है फर्दर, तो आप उसका टाइप कन्वर्जन आप यूज कर सकते हो, टाइप कन्वर्जन जो फंक्शन है उनका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर मैं बात करूँ कैरेक्टर मैंने एक लिया ए, देन उसको अगर मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप उसको भी न्यूमेरिकल वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे अपन करेंगे इसको। अगर मैं आपको करके बताऊं, अगर सपोज यहाँ पर अब मैंने इंटू str किया 12 को, मैंने 12 क्या था आपका इंटीजर नंबर था, लेकिन मैंने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में, इंटू str। तो अब ये कैसे पता चलेगा आपका str इसमें तो आपका एक वेरिएबल। अब यहाँ पर देखिए str जो यहाँ पर अब अगर आप यूज करोगे इसका अगर टाइप आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, मैं एक सेकेंड जस्ट मिनट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके कहने की वेरिएबल का टाइप आपका स्ट्रिंग में चेंज, स्ट्रिंग फॉर्मेट में चेंज हो गया। इसकी कमांड्स में आपको बताऊंगा आगे कि क्या क्या इसकी कमांड्स है, पर अभी जस्ट मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। फिर आता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल जनरली वेरिएबल आपको पता है कि वेरिएबल एक वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी वेरी करती है। इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल हियर आई एम यूजिंग I equal to 12, sometime after that sometime I am using I equal to 13.5 या 14.5 या 50, that means I is a variable। ठीक है, तो वेरिएबल का जिसकी वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी चेंज हो रही है वो वेरिएबल है। ऑपरेटर्स आपको मैंने जैसे बताया, ऑपरेटर में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि अरिथमेटिक ऑपरेटर बता रहा हूँ कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। कुछ कमांड से जो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी कोडिंग के लिए। एक होती है CLC कमांड। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसका यूज क्या है। जैसे मेरी ये कमांड विंडो है, ये काफी बहुत ज्यादा मैंने बहुत ज्यादा जैसे मैंने उसमें कुछ किया और इसके बाद ये क्या हो रहा है कि काफी मेरी ये फिल हो रही है ना। तो इसको अगर मेरे को क्लियर करना हो पूरी जितनी हिस्ट्री है, मैं आपको इसको थोड़ा सा शो करके दिखाता हूँ। हाँ आपको दिख रहा होगा सारा। अगर मुझे इसको क्लियर करना है तो देन आई एम यूजिंग व्हाट, CLC से ये सारा क्या हो जाएगा आपका, ये कमांड की जितनी हिस्ट्रीज है कमांड विंडो की वो सारी क्या होगी, क्लियर। लेकिन अभी भी इसका एग्जिस्टेंस है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है, जैसे सपोज मैं यहाँ पर बात करूँ ANS की वैल्यू कितनी आ रही है 12, वो फिर भी बता रहा है कि 12 क्यों, क्योंकि इसका वर्क प्लेस में जो इसके वेरिएबल बने हैं वो कहीं ना कहीं अभी आपकी क्लियर नहीं हुई। तो अगर आप कमांड विंडो तो क्लियर कर दोगे, लेकिन वर्क प्लेस में जो वेरिएबल है उनको क्लियर करने के लिए एक होता है आपके पास क्या, CLEAR, क्लियर से क्या होगा। अभी आप देखो यहाँ पर आपको ये आंसर और ये str ये दोनों वेरिएबल दिख रहे होंगे। जैसे मैं कमांड इसको रन करूंगा, ये आपकी ये यहाँ से भी ये आपकी क्लियर। तो आपको अगर आपको क्लियर कमांड कब यूज करना है, जब आपको वेरिएबल को हटाना होगा। CLC कब करना है, जब आपको कमांड विंडो की हिस्ट्री आपको रिमूव करनी है। एक होता है आपके पास, मैं फिर से कुछ क्रिएट कर देता हूँ ताकि हमारे पास कुछ वैल्यूज हो जाए, जिससे है ना। जैसे मैं यहाँ पर सपोज मैंने और भी कुछ ले लिया है। अब मैं सपोज एक होता है WHO हु कमांड क्या करता है, हु कमांड ये बताएगा कि आपके पास आपने कितने वेरिएबल क्रिएट किए, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन योर साइट, दैट मीन्स हु कमांड। एक और कमांड होती है हुज क्या बताएगा, इन वेरिएबल का अगर आपने ये वेरिएबल क्रिएट किए ये तो बताएगा, लेकिन इसकी साइज क्या है और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है ये भी इसको हुज कमांड बताएगा। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, हु और हुज में बहुत डिफरेंस है कि हु कमांड क्या करता है, हुज क्या करता है, क्लियर। देन अब आता है डिसीजन कंट्रोल सिस्टम। डिसीजन आपको पता है, डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन द डिसीजन you can choose what is the right or what you want to execute or what you don't want to execute. So based on the decision, here decision means here I'm using if else because MATLAB में facility if else आप use करते हो। if means अगर आपकी condition true है,
if में तो आपके if part execute होगा, otherwise ये else part हो. पर C और इनमें बहुत differences है. C और इसमें थोड़ा सा इनका way of writing और syntax थोड़ा change है. तो आप ये देखो यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने लिया I, then I is greater than this, then square root फंक्शन हमने यूज किया है. तो इस फंक्शन से क्या होगा आपका, ये आपका कहीं ना कहीं पहले तो कंडीशन यहाँ पर चेक होगी I is greater और नॉट. ग्रेटर है तो आपका अंदर आ गया, देन स्क्वायर रूट निकलेगा I का कितना हुआ, 2 हुआ. 2 किसमें आ गया, J में, और J की वैल्यू प्रिंट कर देगा. सर आप अगर इनको वैसे अगर आप वो कर सकते हैं तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. ऐसे सर अगर आप इनको है ना अनम्यूट कर दें तो ठीक है. मैं कोई क्वेरी पूछ रहे थे फिर आप सर क्वेरी है, कुछ कोड चलाइए सर थोड़े से. एक आध कोई कोड, किसी एल्गोरिथम का कोई कोड चला के दिखा दीजिए. अच्छा. हाँ. और सर थोड़ा सा ये भी बताइए कि मतलब मैटलैब को मतलब कैसे अपन स्टार्ट करते हैं लाइक, और फिर स्टार्ट करने के बाद कैसे कोड एग्जीक्यूट होता है थोड़ा सा. अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि कोई भी पार्टिसिपेंट तो आप मुझसे. हाँ, अनम्यूट कर देता हूँ मैं, अनम्यूट कर देता हूँ. हाँ. हेलो. हेलो. गुड आफ्टरनून सर. हाँ पूछिए. Sir, sir told me the loop structure I equals to 4, which is displayed on the screen. Sir, would you please run the same set of instruction on MATLAB? हेलो. Hello, sir. 1 मिनट मैम. Am I audible, sir? यस मैम, ऑडिबल. जस्ट मिनट में अनम्यूट कर दो. हेलो ब्रजेश सर. हेलो. 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 हाँ. हेलो. वॉइस नहीं आ रही. Afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. Sir, you shown some set of instruction on PPT right now. I equals to 4. Yes, yes. Would you please run the same set of instruction on MATLAB simultaneously, sir? Okay. So okay, I can okay. No problem. Okay, sir. Okay, no problem. No problem. No problem. Any others? Any questions? Sir, I want to know by this execution that there is no need to write data types in front of Okay, initialization. I will do parallelly at the time of presentation. I am also demonstrating one by one. Okay, sir. That is beneficial for me. Okay, sir. Okay, no problem. जैसा और किसी को और कोई है? और किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ सर, इसको करिए फिर आगे मैं पूछता हूँ मैं, है ना. Okay. Then decision control, that I already said that based on the decision you can choose what types of code you have, what is good or not. If your condition is true, then you will go to if part, otherwise go to else part. Here I am using if only. Then I will also demonstrating this code. I equal to 4, then
4 is true in this case, and square root of 4, that means 2 true, and the value of 2 is assigned to j, and the answer is j. Answer is means 2. Again, if I am using this, suppose here I am using semicolon in this code, then let's see what is the answer. That means nothing. इसका मतलब क्या है, आपने सेमीकोलन लगा के आंसर क्यों नहीं आ रहा है? Why? Because I already told you, if you are using semicolon like here, then that is assignment but not executed, because the value is created or variable is created but not showing the answer. Then how to show? But you have to just type a j, because j, the value assigned to j, then that is 2, है ना? तो सेमीकोलन लगाने से क्या होगा, नहीं लगाने से, मैंने दोनों चीजें आपको बताई थी. अगर सेमीकोलन आप नहीं लगाते हो, if you are not putting the semicolon, then the output is directly displayed on the screen. But if you are using semicolon, then you have to put a variable name for showing your output. That's why. Next is suppose in this case I based on I the condition true or false, ये आपको करके दिखा देता हूँ. तो यहाँ पर अगर हम बात करें I की वैल्यू, यहाँ पर अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपका I की वैल्यू 3 है, 3 is less than 0, कंडीशन फॉल्स है, दैट मीन J की वैल्यू आपकी प्रिंट होगी. J की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, तो आपकी J की वैल्यू -1 प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि आपकी 0 से कहने की ग्रेटर वैल्यू. ठीक है, तो 1 by 1. Then switch statement. Switch is also useful when you suppose अगर आप कोई मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें based on the user's choice, you can take some action according to user's choice, then you can use switch statement. Here suppose here I am using input is a already built-in function. Input using input is the data is as the data is shown on the screen. Whatever you are using in this function, then it will display same as. Then input take the number. Input means you have to take a number. Then, for example, if you are using scanf in C, then similarly input in MATLAB you can use input. तो input आपका number जो भी value number में assign होगी, the number based on the switch and case the task will display. मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ कि क्या इसका यूज है. अगर मैं यहाँ पर इसको मैं क्लियर कर देता हूँ. ये आपका कोड रन हो गया. यहाँ पर सबसे पहले आपसे इनपुट में पूछा था enter a number, then the message is what, enter a number. Suppose I am using number is what, number is 1, then 1 is automatically into the number, and based on the 1 directly jump to the case, what case where 1 is created. 1 is here, then answer is what, positive 1. Answer is what, positive. If you are suppose if you are मैं इसको फिर से अगर इस कोड को करता हूँ और सपोज मैंने कोई वैल्यू दे दी है 5, तो 5 इज व्हाट, 5 is other value, because you are not specify the case of 5. That means otherwise will display. Clear? Okay, sir. Then anyone the next, anyone has any question, then you can ask. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है. हेलो, आप लोग खुद अपने आप से अनम्यूट कर सकते हैं. देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सपर्ट. ओके सर. जयराम सर, कोई हाँ क्या पूछ रहे हैं सर, पूछिए प्लीज. नहीं कुछ नहीं, मैं ओके.
सर हेलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। पूछिए, क्वेश्चन है कोई भी सर आपका? ये परसेंट, हाँ हाँ, सर, ये परसेंटाइल डी है, उसके बाद स्लैश एन है, इसका यूज किस लिए किया गया? हाँ, बरजे सर। हेलो। हाँ, ओके ओके। हाँ, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं जैसे शायद। जी जी। हाँ, वो नो प्रॉब्लम। जैसे आप जनरली आप क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको एक तो तरीका इनपुट लेने का आपको बताया, इनपुट फंक्शन यूज कर सकते हो। हियर आई एम यूजिंग एफ प्रिंटफ। एफ प्रिंटफ द सिंटैक्स ऑफ एफ प्रिंटफ मींस आपको अगर कोई इंटीजर वैल्यू लेनी है, इंटीजर वैल्यू अगर शो करनी है, अब यहाँ पर प्रिंटफ लिखा है, दैट मींस शो करना है। तो अगर प्रिंट जब वैल्यू शो करनी है तो आपको परसेंट डी लगाना है इंटीजर वैल्यू के लिए। स्लैश एन मींस द कंट्रोल आपका नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए, हमने जैसे सेम सी लैंग्वेज में होता है, तो अगर नेक्स्ट लाइन पे आपका कर्सर को लाने के लिए आपको स्लैश एन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर मैं करके आपको दिखाता हूँ। अभी जस्ट मिनट में बताता हूँ थोड़ा इसके डेमोंस्ट्रेशन के पहले कि व्हाट इज लूप। लूप जनरली होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज आपका लूप का मीनिंग क्या है। लूप मींस आपकी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स आपको रिपीट करना है अकॉर्डिंग टू यूजर्स टास्क और यूजर नीड। सपोज कोई एक स्टेटमेंट को मुझे काफी टाइम रिपीट करना चाहता हूँ, दैट मींस आई एम यूजिंग। क्योंकि एक तरीका तो ये है कि अगर सपोज मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है हेलो वर्ल्ड का, उसको मैं 100 टाइम्स प्रिंट करना है, तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप 100 टाइम्स प्रिंटफ लिखोगे अगर सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, और उसको रन कर दोगे। और एक तरीका ये कि एक लूप लगाना है, एक लाइन में एक लूप लगाना है जो 1 से लेकर 100 तक चलेगा, और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड आप प्रिंट अप कर दो। तो विच वन इज बेस्ट? सेकंड, जाहिर सी बात है सेकंड वन इज बेस्ट, बिकॉज क्योंकि आपकी कोडिंग आपकी रिड्यूस हो रही है, प्लस आपका ओवरहेड आपसे कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो लूप मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। अगर आप मल्टीपल टाइम पर एग्जीक्यूट करना है तो आप लूप का यूज कर सकते हो। मैटलैब में 2 टाइप्स ऑफ लूप्स है, एक होता है व्हाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। पता हो व्हाइल लूप? व्हाइल लूप मींस व्हाइल का यूज करके आप मल्टीपल टाइम्स स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट करा सकते हो। जैसे व्हाइल का सिंटैक्स क्या होता है, व्हाइल देन कंडीशन, और उसके बाद अगर इफ योर कंडीशन इज ट्रू देन इट विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ व्हाइल ड्यूरिंग व्हाइल ब्लॉक। ठीक है, तो इसको अगर हम चला के देखें तो यहाँ पर देखो, इसको मैं जल्दी इसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि यहाँ पर p की वैल्यू 1 है। 1 से लेके आप क्या कर रहे हो, 1 से लेके 7 तक। आपने 7, एक्चुअली 7 तक नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी 7 वाली कंडीशन कहीं ना कहीं आपने लेस देन लिखा हुआ है। हाँ, दैट मींस आपका 7 इंक्लूडेड नहीं है इसमें। अगर आपको 7 तक प्रिंट करना तो आपको इक्वल टू इसके लिए लगाना पड़ेगा। तो जनरली लूप का ये सिंटैक्स है मैटलैब में कि आपको ये वैसे शायद आपने किया भी होगा आप लोगों ने, लेकिन मैं मैटलैब में कैसे करते हैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि मैटलैब का क्योंकि थोड़ा बहुत कोड कहने के डिफर होता है। अब जैसे एफ प्रिंटफ की मैंने बात की थी, वहां पर अगर दूसरी लैंग्वेज में सिंटैक्स अलग हो सकता है। तो यहाँ पर आप 1 से लेके अगर वैल्यू प्रिंट करो तो आपको इस टाइप का कोड आपको यूज करना पड़ेगा लूप का। देन नेक्स्ट इज सपोज यहाँ पर एक और तरीका है इसके लिए। अगर एक तो मैंने व्हाइल लूप का बता दिया, एक अगर आपको बात करें फॉर लूप, तो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं। सेमीकोलन था आपके पास और एक था कॉलन। सेमीकोलन क्या करता था, सेमीकोलन आपका करता था कि किसी स्टेटमेंट के बाद अगर लिखते थे तो उसकी वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करता था। और सेकंड था कॉलन। कॉलन का कहाँ यूज होता है, कॉलन वैल्यू को वन बाय वन एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस क्या है, ये कोड ये जो है ना 1 से स्टार्ट होगा यहाँ पर, और बिकॉज ऑफ कॉलन ये कहाँ तक जाएगा, आपका 7 तक वैल्यू जाएगी। आ रहा समझ में? तो यहाँ पर अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पर इस कोड को, ये फॉर लूप का कोड है। तो जनरली अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पर कहाँ क्या है ना, ये क्लियर हो गया होगा आपको कि उसमें डिफरेंस क्या है ना। तो यहाँ पर कॉलम के थ्रू आप वन, लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा कुछ प्रिंट करना है कि सपोज जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ 1 से स्टार्ट हो और यहाँ पर जाए वो लास्ट 20 तक जाए। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो 20 तक जा रहा है और इसके बीच में मैं डिफरेंस कर देता हूँ किसका, सपोज 2 का कर देता हूँ। तो आपका आंसर किस टाइप से आएगा, आपके पास डिफरेंस हाँ 1 के बाद 1 के बाद कितनी स्विचिंग हो जाएगी,
1 3 5 7 देखिए डिफरेंस मैंने कितना कर दिया, 2 2 का। 2 का। तो इसके इसी टाइप से आप आगे अपनी कोडिंग भी इसमें ऐसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट यू ऑलरेडी नो अबाउट व्हाट इज जंपिंग। जंपिंग स्टेटमेंट मींस इफ यू आर अगर आपको लूप में किसी कंडीशन में कोई आपको कंडीशन के ट्रू होते ही अगर उसको